So assalamu alaikum. Well, in this video we'll take a look at the middle ear. So we know that middle ear is basically a cube shaped cavity present between the external acoustic meatus and the inner ear. So here it is present. So let's take a look at its boundaries and its contents. Okay, so it has a superior boundary, an anterior boundary, inferior boundary, इसको हम फ्लोर भी कह सकते हैं, रूफ, फ्लोर, एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री, द मीडियल बाउंड्री एंड द लेटरल बाउंड्री, जिसको हम रिमूव करके इसको इन एस्पेक्ट पर स्टडी कर रहे हैं. नाउ द लेटरल बाउंड्री एज वी नो इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड द मीडियल बाउंड्री विल बी फॉर्म्ड बाय द स्ट्रक्चर्स ऑफ द इनर ईयर, दैट इज द फर्स्ट फोल्ड ऑफ कॉक्लिया विच वी कॉल एज द प्रोमोन्ट्री. Then there is a oval window, a round window, facial canal and the lateral semicircular canal का एक bulge हमें नज़र आता है. Okay, so the roof is being formed by a part of the temporal bone that is called as the tegment tympani. Part of the petrous part of temporal bone का एक thin plate होती है which is called as the tegment tympani, जिसका roof बना रही होती है. And over the roof we have the presence of the middle cranial fossa. Then the floor is also being formed by the thin plate of bone जो को separate करी होती है इस middle ear को from the superior bulb of internal jugular vein. And then the anterior boundary is also being formed by basically जो हमारा middle ear है totally present होते हैं within the petrous part of temporal bone. तो सारी boundaries उसी bony plate से बनी होती हैं. So there is a bony plate जो separate करी होती है इसको from the internal carotid artery जो कि बना रही होती है इसकी anterior wall. Then the posterior wall is being formed by another thin plate of bone जो कि separate करी होती है from the mastoid bone, जहाँ पे होता है mastoid antrum जिसके अंदर mastoid air cells भी होते हैं. So उससे separate इसको करा होता है posterior wall. And then as we know कि medial wall तो इसको inner ear से separate out करी होती है. और medial wall पे हम नजर आती है promontory which is formed by the fold of the cochlea. Then we have the oval window, the round window, prominence of facial canal and the prominence of lateral semicircular canal as you can see. Okay, so let's see और क्या कुछ है यहाँ पर. Then we have the lateral wall being formed the tympanic membrane inferiorly and lateral wall of ये तो खैर कुछ हो रही है लेकिन we know that it is the tympanic membrane forming its lateral wall and separating it from the external acoustic meatus. The medial wall is being formed by the lateral wall of inner ear जिसमें हम सारे structures जो present होते हैं वो देख चुके हैं, and anterior wall भी देख चुके हैं, and then floor and roof are also देयर. ओके, अब हर एक वॉल में कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं, ठीक है. नाउ हर एक वॉल में कोई ना कोई कनाल होगा जिसको हम कनालिकुलस भी कहते हैं, और उस कनाल में से कुछ ना कुछ गुजर रहा होगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल जिसकी फ्लोर है, फ्लोर के मिडिल एस्पेक्ट पे वी हैव द प्रेजेंस ऑफ टिम्पैनिक कनालिकुलस. उस टिम्पैनिक कनालिकुलस में से बेसिकली प्रेजेंस गुजर रही होती है टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व जो कि इस मिडिल ईयर को सप्लाई भी दे रही होगी. सो इन द फ्लोर विल बी फाइंडिंग द टिम्पैनिक कनालिकुलस गिविंग द पैसेज टू द टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व, राइट. देन वी हैव इट्स एंटीरियर वॉल. एंटीरियर वॉल हम देख चुके हैं, देयर इज एन ओपनिंग फॉर टेंसर टिम्पैनिक मसल जहाँ से वो एंटर हो रहा होता है this cavity. Then we have the eustachian tube के लिए एक opening होती है as you can see. Then we have another thing जहाँ पे opening हो रही होती है, and we know that the other part of the plate is separating the middle ear from the internal carotid artery. Now internal carotid artery is एक sympathetic plexus होता है जिसमें से दो nerves गुजरे होते हैं called as the superior and inferior carotico-tympanic nerves, right. So these carotico-tympanic nerves भी यहाँ से entry ले रही होती है in it. And then कहा जाता है जो bone septum है between the canals for the tensor tympani and the auditory tube right here, इसके दरमियान में एक हल्का सा प्रोसेस निकला होता है इस वॉल में से, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोसेसेस cochleariformis, right. And thus that processes cochleariformis will be giving you can say वो act करता है as a pulley for the passage of the मसल दैट इज़ अ टेंसर टिम्पनी मसल. ओके, सो जो कि अटैच हो जाता है ऑन द एमेलियस, राइट. सो यहाँ पे तो बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दैट इज़ द सुपीरियर इन्फीरियर कैरोटिको-टिम्पैनिक नर्व जो कि एंटर हो रही हैं, एंड दिस प्रोसेस कोक्लिफॉर्मिस जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है विच एक्ट एज पुली फॉर द टेंडन ऑफ टेंसर टिम्पनी, एंड दैट्स ऑल, राइट. एंड देन वी हैव द पैसेज ऑफ द टेंसर टिम्पनी टेंडन जो कि ऊपर एक यू कैन से ओपनिंग से पास हो रहा होता है. अच्छा जी, नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें नज़र आती है, इन द सेम वेज देयर आर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर कैविटी, ठीक है. यहाँ पे देयर इज एन एडिटस और एन ओपनिंग फॉर द मिडल ईयर जिससे कम्युनिकेट करते हैं विद द मास्टोइड एंट्रम या मास्टोइड एयर सेल्स, राइट. एंड देन देयर इज अ फोसा कॉल्ड एज अ फोसा इंसिडस जहाँ पे प्रेजेंस होती है हमारे इंकस बोन जहाँ जाके अटैच हो रही होती है. अब हमें नज़र नहीं आ रही इंकस बोन, लेकिन जहाँ पे वो अटैच हो रही होती है ऑन द पोस्टीरियर वॉल वहाँ पे प्रेजेंस होती है फोसा विच कॉल्ड फोसा इंसिडिस, राइट. तो दैट इज़ अ फोसा इंसिडिस फॉर द इंकस बोन, वो भी हमें पोस्टीरियर वॉल पर ही नजर आता है. देन देयर इज अ कॉनिकल प्रोजेक्शन which called as a pyramid, and that pyramid is also is for the tendon of the stapedius muscle. Just like we had the opening for the tensor tympani muscle in the anterior wall, we have a we can say a pyramid or a conical projection for the tendon of the stapedius muscle. Then just a bit lateral to the pyramid there is another canaliculus. Just in the floor we have the tympanic canaliculus, in the posterior wall we have the canaliculus called as a posterior canaliculus जिसमें से passage होती है chorda tympani branch of the facial nerve, as you can see here. So this is the
posterior canalicularis in the posterior wall of the middle ear cavity. Then on the lateral wall जो कि हमें नज़र नहीं आ रही, वो तो बेसिकली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बना रही होती है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं that there is a fissure called as a petrotympanic fissure, जिसमें से पास कर रही होती है टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, जो कि फिर अगेन इसको सप्लाई दे रही होती है हमारे मिडल ईयर को. सो मिडल ईयर इज बीइंग सप्लाइड बाय द टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, के पास कर रही होती है थ्रू अ पेट्रोटिम्पैनिक फिशर, जो कि इसके लेटरल वॉल में या फिर इसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है फिशर. देन देयर इज अनदर फिशर इन द लेटरल वॉल कॉल्ड एज एंटीरियर कैनालिकुलस, एज वी सॉ के पोस्टीरियर वॉल में फिशर था दैट वाज कॉल्ड एज पोस्टीरियर कैनालिकुलस. द सेम वे लेटरल वॉल में फिशर दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियर कैनालिकुलस, वो एंटीरियर वॉल में नहीं होगा, वो लेटरल वॉल में होगा, राइट. और उसमें से भी अगेन पास करेगी क्या, कॉर्डा टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. ओके, देन वी हैव द मीडियल वॉल, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें प्रोमोन्ट्री व्हिच इज फॉर्म बाय द फर्स्ट फोल्ड ऑफ कॉक्लिया. Then there is a fenestra vestibuli. Fenestra vestibuli is also called as oval window, जिसके ज़रिए से मिडल ईयर कम्युनिकेट करता है विद द scala vestibuli. And then we have the fenestra टिम्पन है, जिस फेनेस्ट्रा कॉक्लिया है, जिसके ज़रिए से हमारा पास राउंड विंडो भी कहते हैं, इससे मिडल ईयर कम्युनिकेट करता है विद द स्केला टिम्पन है, राइट. सो फिर कहा जाता है कि जो ओवल विंडो दैट इज बीइंग क्लोज्ड बाय द फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस एंड दिस राउंड विंडो इज क्लोज्ड बाय द सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. Okay, ji. Then just a bit lateral to this promontory, we also have a small you can say depression called as sinus tympani, and the sinus tympani will be basically lodging the posterior semicircular canal. Okay, so and the lateral semicircular canal basically यहाँ present, हमें कुछ you can say bulging नज़र भी आती है. सो एज यू कैन सी हम सबको देख चुके हैं, एंटीरियर वॉल में टेंसन टिम्पैनिक मसल है, फ्रिंगोटिम्पैनिक ट्यूब है जो कि इसको जो कम्युनिकेट करवाती है मिडल ईयर को विद द नेसोफेरिंग्स. एंड वी हैव द सेपरेशन बिटवीन द मिडल ईयर एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, में से दो सुपीरियर एंड इंफीरियर कैरोटिको टिम्पैनिक नर्व्स भी पास कर रही हैं. इसकी पोस्टीरियर वॉल में होता है पोस्टीरियर कैनालिकुलस फॉर द कॉर्डा टिम्पैनिक ब्रांच, लेटरल वॉल में होता है एंटीरियर कैनालिकुलस फॉर द कॉर्डा टिम्पैनिक ब्रांच, फ्लोर में होता है टिम्पैनिक कैनालिकुलस फॉर द पैसेज ऑफ द टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व, ठीक है. एंड देन ऑन द लेटरल वॉल वी हैव द पेट्रोटिम्पैनिक फिशर फॉर द पैसेज ऑफ द टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी. ओके, कंटेंट्स की बात की जाए तो वी नो दैट देयर इज एयर, देयर आर 3 ऑसिकल्स और 3 बोन्स, मेलिस, इंकस एंड स्टेपिस. देयर आर 2 मसल्स, टेंसर टिम्पैनी एंड स्टेपिडियस मसल, 2 नर्व्स होते हैं कॉर्डा टिम्पैनी जो हम देख चुके हैं कैसे पास करती है, एंड टिम्पैनिक प्लेक्सस जो कि प्रेजेंट होता है ओवर द प्रोमोन्ट्री, राइट. एंड देन द म्यूकोसल फोल्ड्स एंड लिगामेंट्स विल बी देयर, डेफिनेटली हर एक मतलब एसोसिएटेड लिगामेंट भी कुछ होंगे. ब्लड वेसल्स भी देयर जो कि हम देख चुके हैं टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी होती है वहाँ पर. अच्छा जी. सो अगर हम सेपरेटली देखें कि आर्टरियल सप्लाई क्या होती है मिडल ईयर की, तो हम देखेंगे कि 5 आर्टरीज बेसिकली वहाँ होती हैं. एक होती है एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच और मैक्सिलरी आर्टरी, जो एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच हमने देखा था किसके साथ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ भी देखी थी, तो वही यहाँ पे भी सप्लाई दे रही होती है. देन जो कि बेसिकली पेट्रोटिम्पैनिक फिशर से पास करती है, वी सॉ दैट, राइट. देन वी हैव द पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, जो कि अगेन स्पाइक्स को दे रही थी, हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी दे रही थी. देन वी हैव द पेट्रोसल एंड सुपीरियर टिम्पैनिक ब्रांचेस ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी की भी कुछ पेट्रोसल एंड सुपीरियर टिम्पैनिक ब्रांचेस को सप्लाई देती हैं. देन देयर आर सम ब्रांचेस ऑफ द एसेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी, जो कि ब्रांच है किसकी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की. एंड देन देयर आर सम ब्रांचेस ऑफ द टिम्पैनिक ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एज वेल. सो बेसिकली देयर आर सम एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, सुपीरियर एंड पेट्रोसल टिम्पैनिक ब्रांचेस ऑफ द middle meningeal artery, tympanic branches of the ascending pharyngeal artery, and the tympanic branches of the internal carotid artery. So ये हो गई उसकी branches. Venous drainage में we know that they will be draining into subsinus, so there will be superior petrosal sinus and pterygoid plexus of veins, जिसमें यहाँ से हमारा blood जो है वो drain करता है in the venous channels of superior petrosal sinus and the pterygoid plexus of veins. Lymphatic drainage होता है in the same way जहाँ पे हमारे पास हुआ था उसका किसका, tympanic membrane का, that was the perioauricular and retropharyngeal lymph nodes. Okay, and if we talk about the nerve supply, so the nerve supply besides that जो यहाँ nerves आती हुई देखी, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व जो कि टिम्पैनिक कैनालिकुलस से गुजर रही थी, वो यहाँ पर सप्लाई देती है. सेकंड वन वो सुपीरियर एंड इंफीरियर कैरोटिको टिम्पैनिक नर्व जो कि सिंपैथेटिक प्लेक्सस से आ रही थी, वो यहाँ सप्लाई देती है. सो इस तरह से हमारे पास सारी ब्लड सप्लाई नर्व सब कुछ कंप्लीट हो गया. दैट वाज ऑल अबाउट द मिडल ईयर व्हिच वाज एक्टिंग एज अ कंडक्शन चैनल फॉर द साउंड वेव्स टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर टू द इनर ईयर. सो दैट वाज ऑल अबाउट इट. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.